So my dear students, up to this point we have already discussed about the effect of current and its relation with magnetism. You know that when current flows through any wire, it produces magnetic field around it, and you can see that if the current is flowing in this direction, then you can give the direction of magnetic field produced by this current. If the current is I, then the magnetic field produced will be like this. Concentric, and the center will lie on the wire. Its direction can be given by the Fleming's right hand thumb rule. Put your wire in the hand and place the direction of your thumb in the direction of flow of current. Then the curling fingers will give the direction of magnetic field. So here you can see that the direction of the current in the direction of thumb, the curling finger gives the direction of magnetic field. तो इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, आप जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या इसका रिवर्स भी सही होगा? इस पे बड़े लंबे समय तक खोज चली, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी क्या इस तरह की करंट प्रोड्यूस कर सकती है। आप इस बात को क्लियर समझने की कोशिश करें कि यदि एक करंट जो किसी कॉइल में फ्लो कर रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो क्या इसका वाइस वर्सा भी सही होगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रहा है तो क्या वो किसी तरह का करंट प्रोड्यूस कर पाएगा? सवाल उठता है कि ऐसा हम प्रूफ कैसे करें। सबसे पहली चीज तो सबसे पहले फैराडे ने ये प्रूफ करके दिखाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। और ये बड़ा लंबा दौर रहा, कहा इससे रिलेटेड एक एनेक्डोट भी है, साइंस में भी कुछ एनेक्डोट्स होते हैं। फैराडे बड़े लंबे समय से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस हो। उन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। एक दिन अचानक जब वो कॉइल और मैग्नेट के साथ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लंबे समय से उन्हें कोई सफलता तो मिली नहीं थी, इसलिए खींच के उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को फेंका और वो मैग्नेट जब कॉइल से पास हुआ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। और आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन होता है तो देयर मस्ट बी अ वोल्टेज, अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल लीड टू द करंट। तो उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवरी की कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि न केवल फैराडे बल्कि ठीक उसी समय निकोला टेस्ला ने भी ऐसा ही मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट कहाँ किया? अमेरिका में। वो एक स्लाव यानी आप यूगोस्लाविया का एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो यूगोस्लाविया से रिलेटेड रहे थे निकोला टेस्ला। तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे और हम केवल डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ इंडक्शन इज टू इंड्यूस, एंड हियर व्हाट इज बीइंग इंड्यूस्ड? करंट। Current is being induced, and by what method? By changing magnetic field. So, what is magnetic field? Magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produced by the magnetic field. So, magnetic field is the field produc
तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो फिजिक्स की बात जहां तक है, व्हाई फिजिक्स इज अ नेचुरल साइंस, इट इज बिकॉज इट डज नॉट बिलीव ऑन द थ्योरी until unless you prove it with practical। तो फैराडे ने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो किसी कॉइल से करंट एसोसिएटेड होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन हम पहले जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम फैराडे के उस फेमस एक्सपेरिमेंट को भी जानेंगे जिसे 20वीं शताब्दी तक जो है सबसे महान खोजों में से, सबसे महान एप्लाइड जो है एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी से आपके समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एक जनरल जो है डिफिनीशन पहली आपकी क्या बनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये जनरल जो है आपके पास डिफिनीशन बनती है, और दूसरी डिफिनीशन के बारे में हम बात तब करेंगे जब हम फ्लक्स के बारे में जान लेंगे कि फ्लक्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। Everything is in frame? Okay, flux. देखिए फ्लक्स जो होता है वो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज से जुड़ा होता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लें कि आपको लाइट की फ्लक्स नापनी है, तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी गिवन एरिया से कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी मात्रा में गुजर रही हो। जैसे अगर हमें लाइट का फ्लक्स निकालना हो किसी रोशनदान से, तो आप जानते हैं आपका रोशनदान मान लीजिए इतना चौड़ा है, तो आपके रोशनदान की चौड़ाई कितनी है, इतनी है। तो जब आपका रोशनदान इतना चौड़ा है तो उससे रोशनी कितनी जाएगी, इतनी ही जाएगी। लेकिन आपने रोशनदान को और चौड़ा कर दिया तो अब क्या होगा, रोशनदान से आने वाली जो लाइट है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और बड़ा कर दीजिए, और बढ़ जाएगी। तो अगर हम लाइट के फ्लक्स की बात करें तो द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एनी एरिया विल बी नोन एज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया। और जो सबसे पॉइंट और मार्के की बात मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि फ्लक्स हमेशा किसी एरिया पे ही डिफाइन होता है। तो फ्लक्स जो है वो हमेशा किसी एरिया पे डिफाइन होगा। इसी तरीके से अगर आप पानी का फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो वहां भी यही अप्लाई करेंगे कि पानी जो है किस एरिया से गुजर रहा है। पानी जिस एरिया से गुजर रहा है उस एरिया को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी पानी की धारा बढ़ती जाएगी, यानी उसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप जानते हो कि अगर कोई एरिया बिल्कुल पानी के सामने है, जो तुम्हारा पानी जिस खिड़की से गुजर रहा है या जिस गैप से गुजर रहा है, खोखले एरिया से गुजर रहा है, वो उस पानी की धारा के बिल्कुल सामने है, यानी परपेंडिकुलर है, तो पानी क्या होगा, सबसे ज्यादा गुजरेगा। लेकिन अब तुम अंदाजा लगाओ बच्चों कि आपका एरिया क्या हुआ, थोड़ा झुक गया, यानी ये जो पानी की आपकी धारा है उसके साथ वो एक एंगल बना रहा है। ये एंगल देखो, ये एंगल बना रहा है। तो अब क्या पानी उतना ही गुजरेगा जितना 90 डिग्री पे गुजर रहा था? बिल्कुल नहीं, अब पानी की मात्रा घट जाएगी। अब मान लो ये जो एरिया है उसको मैं और घटा दूं, यानी अब क्या हो गया, अब जो है इस तरीके से हो गया, यानी जो तुम्हारा
जो विंडो था पानी को जो जाने के लिए, वो क्या हो गया, बिल्कुल पैरेलल हो गया किसके, पानी की धारा के। तो क्या पानी अब उस खिड़की से गुजर पाएगी, बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर से चली जाएगी, उसके नीचे से चली जाएगी, लेकिन अंदर से नहीं जाएगी। इसका मतलब जो फ्लक्स है, चाहे पानी का हो चाहे लाइट का हो, वो किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड द एरिया, एंड सेकेंड ऑन द एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और आपका जो एंगल होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आपने पहले देखिए फ्लक्स, यहां हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी closed curves which originate from north pole and goes to south pole, and inside the magnet it travel from south pole to north pole। तो सबसे खास बात मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी लाइन हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हमें डिफाइन करना हो फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस थ्रू विच यूनिट नॉर्थ पोल ट्रेवल्स। और वैसे आम जो है जिन्हें फिजिक्स बहुत कुछ लेना देना नहीं है, तो आम भाषा में हम इसको कैसे समझा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज कर्व्स tangent drawn on which gives the magnetic field at that point। Okay, so we have already discussed about it in the chapter 4। So here what is magnetic flux? The significance of the magnetic field line is very similar to the significance of that water line or the ray of light। So here magnetic flux, when we have to define magnetic flux, we have to consider it on any area। Always the flux is always associated with area। तो consider here, this is your magnetic field line, and here is an area। Here you can see that this is an area and these are the magnetic field lines which are crossing this area। तो 1 2 3 4 5, these 5 lines over this area is known as magnetic flux। So how can you define magnetic flux? The number of magnetic field lines crossing through any area placed perpendicular to the field lines। Here you can see that this area is perpendicular to the field lines। So when we shall express flux in the term of mathematical relation, we write phi is equal to B dot A। Here B is the magnetic field and A is the area। So you can see here this is the dot product, and dot product gives scalar quantity। It means flux is a scalar quantity। So we ultimately come to the conclusion that flux is a scalar quantity। Okay, when we shall expand phi, we can write BA cos theta। Okay, अब now
what is theta? What is theta? तो theta is the angle between the normal drawn on the surface या area, the normal drawn on the angle between normal drawn on the area and मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये पॉइंट जो है, ये जो एंगल आपको समझना है, ये जो थीटा, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है और इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने आपसे कहा दिस थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस या एरिया आप कह लें, सरफेस एंड फील्ड लाइन। फील्ड लाइन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे सिनेरियो में। Here you can see that when you will draw the normal to this surface, what will happen? This is your surface, this is your surface, the normal will be in the direction. If you have to draw normal on this surface, the normal is this. This is the normal. This is the normal. Since this normal and the magnetic field lines both have what angle? 0. This is your normal, this is normal, and this is the direction of magnetic field line. So you can see both are the parallel. In that case, theta will be what? 0. थीटा विल बी 0। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अंत तक बहुत से बच्चों के दिमाग में यही डाउट घूमता रहता है कि अंधों की तरह वो देखेंगे और सीधे बोलेंगे कि भैया ये हमारा एरिया है, वो साहब ये जो आपकी लाइन है इसे जा रही है, और हमारे माँ सामने बताया था ये बन गया 90 डिग्री। वो ये सबसे खतरनाक जो है assumption है। मैंने फिर कहा आपसे डिफिनीशन पे बिल्कुल जो है अपना दिमाग लगाइए कि आपको जो थीटा एंगल लेना है यहाँ पे, दैट इज नॉट द एंगल बिटवीन सरफेस एंड द फील्ड लाइन, दैट एंगल इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस। जो आपका ये एरिया है उस पर आप पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल है आपको उससे लेना देना है, ये याद रखिएगा। अगर आपने गलती से भी सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। और कुछ जगहों पे आप जहाँ जाएंगे कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए तो वहाँ हमारे साहब लोग बता देते हैं BA साइन थीटा ले लीजिएगा, तो वहाँ वो वाला काम आपका निपट जाएगा कि आप अगर आपके वो सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का भी एंगल पता हो तो आप साइन थीटा यहाँ रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग। तो मुझे वहाँ नहीं जाना है बल्कि मुझे NCERT पे ही बिल्कुल स्टिक हो रहा है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड फील्ड लाइन। सीधे कभी भी आप सरफेस और फील्ड लाइन के बीच का एंगल नहीं लेंगे, हमेशा सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल और फील्ड लाइन के बीच का एंगल लेंगे। याद रखिएगा हर साल जो है